Assalamualaikum, how are you? Today I am going to deliver a lecture about especially vocab. These words have been taken from especially Dawn News, especially which is very important for any competition point of view. Today I am going to deliver a lecture about these vocab, especially before delivering lecture. Before coming on the topic, if you didn't do subscribe YouTube channel, do subscribe, like, comment, share, because I will bring such kind of videos. That videos will be especially more helpful for you. So आपको क्या कर लेना चाहिए? Like, subscribe कर लेना चाहिए. You be part of this YouTube channel. Especially I will bring such kind of lectures, special videos that will be more helpful for you. So let's start. These words are definitely these words are very important. ये क्या very important word है. अगर बात करें हम किसी भी competitive point of view, the vocab of especially Dawn is the mother of CS. Definitely we need to read it, we need to write down it, we need to note down these words. These words will help you. ये words आपको मदद देंगे, आपको मदद देंगे किसी भी competitive exam कोई भी आप लिखते हैं, कोई भी whatever you want to do, write down. Definitely these words will help you. So let's start. First word, glory. Glory means fame. If we talk about the meaning of this word, this is a general noun. ये क्या noun है? Glory means fame. Fame is शान शौकत, something that's very well. वो क्या शान शौकत अच्छी चीजें हो गया. Glory है. Glory means अच्छा. Generally glory को याद. If you want to use the trick, you to make the trick by of this word by locking in your mind, you can make the trick. Glory means glad, something that's glad. वो क्या glory है. जो अच्छी चीजें होती है उसको देखकर हम क्या glory हो जाते हैं. Glory means very well or fame, popular भी हम कह सकते हैं, और शान शौकत. We have another word, tirade. The meaning of this word tirade means, if we talk about this word is tirade. ये बंदा टायर हो गया, वो क्या tirade है. He is in such a condition, and especially tirade condition. वो क्या tirade condition. Tirade means having tired. वो थका हुआ है, या tirade है. वो क्या थका हुआ है. If we talk about the meaning of this word means tirade. If you want to use this word, if you want to lock this word by making trick, you can make the trick by tire. बस tired से tired हो गया, tired से tired हो गया. You can lock this word by making this trick. Tired means थका हुआ. ये क्या है? थका हुआ. This is noun, this is verb. Especially tirade, tired. If you want to just you can take tirade. Okay, we will move on. Impact. I have already told you that a word which having im, un, such words un, in, like a, these words having negative meaning. If we talk about the pact means agreement or something that's agreement, so means मायदा मुतालबा होता है, मायदा होता है, उसको pact कहते हैं. If we add the m with that pact, then the agreement which was conducted between the Pakistan and India was impacted. वो क्या उस पे bad तासरात पैदा हुए. Impact means bad तासरात. ये वर्ड im means negative impact पैदा होता है. im और जिस वर्ड के साथ आ जाता है क्या है? Something related to negative. Pact means agreement. अग्रीमेंट जो होता है एक कंट्री, दो कंट्री एक बीच दूसरे से बैठकर मुतालबा करते हैं, जो वादा करते हैं, वो क्या अग्री है, अग्रीमेंट है. उसको पैक्ट है, वो क्या पैक्ट है. अगर पैक्ट के साथ इम लगाएं तो क्या है? इम्पैक्ट. जो अग्रीमेंट था वो क्या नाकाम हो गया. We will move on. This is another word, interpretation. If we talk about this is maybe you would like to, it might be it is a new word for you, especially हम जानेंगे क्योंकि हो सकता है आपके लिए वर्ड्स नया हो. But interpretation is explain meaning with details. This word especially has been mentioned, especially Dawn, especially newspaper, especially in magazines, especially in अगर बात करें ये क्या है, ये मोस्टली वर्ड सच पेपर में इस्तेमाल किया जाता है. Interpretation means whatever you have conducted research about global economy, about research about COVID-19, about whatever you have conducted, you have explained very detail. आपको क्या आपने अच्छी तरीके से उसको इंटर दाखिल करना, इंटरप्रेट दाखिल करके फिर क्या प्रिटेड करते हो, फिर क्या प्रिटेड करते हो. इफ यू वांट टू मेक द प्रिटेड मींस आप दाखिल हुए, फिर क्या उसमें देखें तो अगर मैं बहाना करूंगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटरप्रेटेड के बाद तो क्या करना, आपको अच्छी तरीके से कुछ उसको कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करके, देन यू नीड टू पास आउट. इंटर मींस एक्सप्लेन मीनिंग, अच्छी तरीके से मीनिंग के साथ साथ उसको वजाहत करना, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन. दिस इज नाउन. इफ यू वांट टू मेक द वर्ड तो वर्ब करना चाहते हैं तो कि इंटरप्रेट मींस वर्ब. वी विल मूव ऑन. एम्पावर. Empower, this is a general word. If we don't need to make the trick of this word. Definitely this is new word. And so no, this is a general but not new word.
एम्पावर मीन्स गिव लीगल पावर, गिव राइट्स, जो भी राइट्स उसके हकूक हैं उसको दिए जाए। एम्पावर मीन्स द राइट्स ऑफ वुमेन शुड बी गिवन, द राइट्स ऑफ सिटीजन शुड बी गिवन। एम्पावर ये क्या है, वर्ब हो जाता है, ये क्या है, वर्ब है, पावर दिस नाउन। अगर हम पावर के साथ लगाते हैं वो क्या है, हम जो पावर है यूटिलाइज है उसको क्या है, एम्पावर। दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। अगर मैं बात करूं एम की मीनिंग है अंदर या कुछ निगेटिव मीनिंग है, पर यहाँ से मीनिंग यही है कि एम्पावर जो भी इसके जो हकूक हैं उसे इसे देना चाहिए। एम्पावर मीन्स इख्तियार दे देना चाहिए, इख्तियार देना। वी विल मूव ऑन। Another word is obvious. If you want to make the trick obvious, ओ भाई ऐसा करो, ओ भाई ऐसा करो, ये तो सिंपल है obvious. If you want to make the trick, you say ओ भाई ऐसा करो, ओ भाई ऐसा करो. You can make the trick by using this trick. Obvious means clear. Something that's clear, जो clear है, साफ है, अच्छी तरीके से बयान किया गया वो क्या obvious है. We will move on. Another word we have surveillance. If you want to make the trick, this word it might be new for you, especially सर्विलेंस। इफ यू वांट टू मेक द ट्रिक ऑफ द सर्विलेंस को याद करना चाहते हो सर्व से याद करो। सर्वे होते हैं वो क्या, हम उस पर खिदमात सर अंजाम देते हैं, खिदमात सर अंजाम देते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम निगरान भी करते हैं, हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। सॉरी हम पहले देखते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेट होते हैं, हम उसको देख कर फिर क्या सर्विलेंस करते हैं। सर्विलेंस मीन्स निगरान, टू सर्व एनी एडमिनिस्ट्रेशन, टू सर्व एनी स्टेट, टू सर्व एनी पावर सेक्टर, जो भी पावर सेक्टर उस पर जो खिदमात है उसको सरंजाम देना, उसको कहते हैं सर्विलेंस। We will move on. This is scrutiny. Scrutiny, if we talk about, this is noun. Scrutiny means do scrutinize, चकास करना, एग्जामिन करना, उसको कहते हैं स्क्रूटनी। चेक प्रॉपर्ली, इसको स्क्रूटनी करना चलाना चाहिए, इसको स्क्रूटनी करना चाहिए। स्क्रूटनी स्क्रोल से याद करो, स्क्रोल होता है वो क्या होता है, हम इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट से चेक करते हैं, उसमें इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। स्क्रोल एक दूसरे पे चढ़ा भी नहीं हो तो अगर होगा तो क्या वो फॉल्ट पैदा कर सकता है। स्क्रूटनी मीन्स टू एग्जामिन और डू स्क्रूटाइनाइज। We will move on. Another word is persecute. Persecute means bring criminal into court. कोई भी बंदा है, कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी इलिजिट है, उसको कोर्ट में लेके जाता है कि जस्टिस इंश्योर करने के लिए, वो क्या क्रिमिनल, वो क्या प्रोसिक्यूट है। दिस इज वर्ब। इफ यू वांट टू मेक द जस्ट नाउन तो क्या है, प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर मींस अ पर्सन हु ब्रिंग्स क्रिमिनल, ऐसा बंदा जो क्रिमिनल को कोर्ट में लेके जाता है वो क्या प्रोसिक्यूटर है, मींस ब्रिंग क्रिमिनल इनटू कोर्ट। डेफिनेटली persecution, if you want to make the trick of this word persecution means आप जानते थे पर ऐसा क्यों किया। क्यूट मीन्स कट, पर्सन ने क्या किया, पावर सप्लाई को कट कर दिया, पावर सप्लाई को कट कर दिया, इलीगल का काम कर दिया उसका। पर मीन्स पर्सन, इफ यू वांट टू मेक पर्सन, कट मीन्स कट डाउन, जो भी लीगल चीज है उसको कट डाउन किया जाता है वो क्या इलीगल है, हम उसको क्या क्रिमिनल कंसिडर किया जाता है। तो इसी वर्ड से भी आप कुछ बना सकते हैं। प्रोसिक्यूट मींस उस बंदे को मैंने बताया आप ये नहीं कर लेना चाहिए, आप उसको कट कर नहीं कर लेना चाहिए, उसने क्या प्रोसिक्यूट कर दिया, उसने क्या उसको कट कर दिया। अगर मैं देखूं तो एक वर्ड दूसरा भी है, मैं आपको बताता हूँ। कैटेस्ट्रॉफ, शायद आपने ये सुना होगा, हमारे लेक्चर में पहले इस पर डिलीवर कर चुका हूँ। कैटेस्ट्रॉफ ये है कैट मीन्स कट, CUT कट है या CAT कट, ये है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड। कट मीन्स कट डाउन, जो चीजें क्या लैगिंग हो रही है, जो चीजें क्या पीछे जा रही है वो क्या कट डाउन हो रही है। कैटेस्ट्रॉफ, ट्रॉफ मीन्स फुट, फुट की कंजम्पशन कम हो जाती है, कैटेस्ट्रॉफ हो रही है, समथिंग दैट्स गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, लैगिंग डाउन, वो क्या कैटेस्ट्रॉफ हो रही है। We will move on. This another word we have is brittle. ये जनरल वर्ड है, we don't need to make trick of this word. Brittle means break softly. ऐसी चीज जो सॉफ्टली ब्रेक हो जाती है क्या, जिसको हम भुरकना कहते हैं। Whatever we call भुरकना means something that break softly, उसको हम ऐसे हाथ डालेंगे तो आस्ते आस्ते वो टूट जाती है, उसको क्या कहते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स समथिंग दैट कैन ब्रेक इजीली, उसको हम आसानी से जैसे हैंड टच करेंगे, सब ये ऑब्जेक्ट इस पे हैंड टच करेंगे तो आस्ता आस्ता टूटना शुरू हो जाएगी, उसको कहते हैं ब्रिटल। How we will move on. Another word is rowdy. ये तो आपने सुना होगा, राउडी मोस्टली फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है। इफ दिस वर्ड राउडी, राउडी होता है वो क्या राउडी है, र्यूड है, उसका बिहेवियर क्या है, एक खराब है, एक कॉमेडी है। राउडी मीन्स लाइक र्यूड, उसका क्या गुस्ताख करना, र्यूड मीन्स गुस्ताख, मीन्स अ पर्सन डज नॉट रिस्पेक्ट, अ पर्सन डज नॉट टेक केयर ऑफ एनी रिस्पेक्टली, और रिस्पेक्टली वो नहीं कर रहा है, कि राउडी है। राउडी को याद करना चाहते हैं तो र्यूड से याद करो। जनरल वेरी सिंपल, राउडी एंड र्यूड बोथ हैव द सेम मीनिंग। दिस इज नाउन, दिस इज वर्ब।
rudeness आपने सुना होगा, गुस्ताखी. We have another words wronged. This is especially in verb, third form is jealous, या verb भी है और उसके साथ में भी बता दूं adjective भी है, क्योंकि यहाँ से adjective है. स्पेशली बात करें, wronged means did wrong, उसने गलत काम कर दिया, क्या did wrong. और bad भी हम कह सकते हैं, they were wronged, वो क्या गलत हो गए, वो क्या they were wronged. Definitely you can use this word. और wrong means गलत होना, गलत किया. स्टेंस, ये जनरल वर्ड है. स्टेंस मींस नाउन, ये क्या नाउन है. अगर मैं बात करूँ स्टेंस मौकफ, आपका ख्याल क्या है, व्हाट एवर योर ओपिनियन अबाउट कोविड-19 के आपके मौकफ क्या है. स्टेंस को हम मौकफ भी कह सकते हैं. मौकफ जो हमारे व्यूज, जो स्पेकुलेशंस, जो आइडियाज कोविड-19 और ग्लोबल इकोनॉमी की जो डाटा है रिलीज होने वाली है. अगर मैं बात करूँ 2020 के आखिर में डाटा रिलीज हो जाएगी, तो आपकी स्टैंस क्या है कोविड-19 की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या तासरात होगी. उसमें पाकिस्तान जो 53 नंबर पे था, अब वो किस नंबर पे होगा, 44 पे होगा या 45 पे होगा या सेमी नंबर पे होगा. तो ये क्या है, आपका ख्यालात है, उसको कहते हैं स्टैंस. मिस मौकफ देती हो, क्योंकि आप कहते हो कि कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान इकोनॉमी में भी पीछे जा सकती है. क्यों, अब जो हम वेट कर रहे हैं डाटा, whenever data are released, then we will be able to know our economy will go on backward or forward direction. हम जानेंगे उसी डाटा की मदद से. So let's start that lecture. I will upload on my YouTube channel. You must watch that lecture. So you be wait for as it will release, and then I will upload it. Okay. We will move on another word. Embark. अगर मैं बात करूँ, bark में something that's क्या है, वो एक छोटा, हम उसको क्या कहते हैं, जो भी प्लांट्स हैं उसके जो आउटर पार्ट को आप काटते हो, क्या है, बार्क है. बार्क को कट कर दिया, उसको छोटे छोटे चीज़ों को मिलाकर आप क्या दूसरी चीज़ बनाते हो, क्या बार्क है. एम मीन्स अंदर, या अंदर समथिंग, या अंदर, जैसे कि छोटी चीज़ें टूट जाती हैं, हम इसको मिलाकर दूसरी चीज़ बनाते हैं. बार्क मीन्स मेक स्टार्ट न्यू वर्क, कोई नई चीज़ बनाती, कोई नई प्रोजेक्ट बनाते, कोई नई यूनिवर्सिटी में आप जर्नी स्टार्ट करते हो, क्या है, बार्क. जैसे कि I embarked my journey especially in 2018 यूनिवर्सिटी ऑफ संजामशोर. हमने क्या, हमारी जो जर्नी थी वो क्या न्यू जर्नी स्टार्ट हुई 2018 में, अभी वो चल रही है. हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी 2021 के बाद. हमारी जर्नी न्यू होगी 2021, क्या हमारे लिए नया एम्बार्क होगा. एम्बार्क द 2021 विल बी एम्बार्केबल फॉर एवरीवन. हर एक के लिए नया नया ख्वाब लेके आएगा, पता नहीं क्या क्या लेके आएगा. तो ये क्या वर्ब है. We will move on another word, saddle. saddle ये क्या है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई बंदा बैठता है, कोई लोग बैठकर उसको राइड करता है, वो क्या है, saddle है. saddle means a place where rider sit there to ride horse. ऐसा बोले जो कि जिसको हम ऐसा सिंपल लैंग्वेज में ज़बान में बात करें तो क्या, ऐसी जगह जहाँ से एक लोग बैठकर घोड़े को ड्राइव करता है, घोड़े पे सवारी करता है, उसको कहते हैं सैडल. दिस इज नाउन. स्पेशली वी मूव ऑन. अनदर वी हैव वर्ड स्पेयर. स्पेयर मींस छोड़ना. ये तो क्या एक हम बात कर रहे हैं, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम डॉन. स्पेशली स्पेयर ये जनरल है. वी डोंट नीड टू मेक द ट्रिक ऑफ दिस वर्ड स्पेयर. ये हम जनरल इस्तेमाल करते रहते हैं. स्पेयर मींस नहीं छोड़ना, किसी को छोड़ना. अगर आप कहते हैं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आई वॉन्ट टू स्पेयर यू, आई वॉन्ट टू स्पेयर यू मीन्स मैं आपको नहीं छोड़ूंगा. स्पेयर मीन्स छोड़ना. स्पेयर मीन्स छोड़ना. टू गिव अप, उसको छोड़ देना. व्हाट एवर यू वांट, बिकॉज ही हैज मेड मिस्टेक, यू वांट टू, यू से ही हैज मेड मिस्टेक, आई वांट टू स्पेयर, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं सनम को नहीं छोड़ूंगा. वो क्या, आई वांट टू स्पेयर यू सनम. वी हैव ए स्पेशल लास्ट वर्ड, वैक्सीनेट. वैक्सीनेट ये क्या है, वर्ब है. अगर बात करें ये क्या वर्ब है. स्पेयर ये वर्ब भी है, नाउन है, ये दोनों कंडीशन में है. तो ये क्या है, ये वर्ब है, नाउन है. ये क्या स्पेशली वर्ब है. पुट वैक्सीन. पुट मीन्स लगाना, कोई लगाती हो क्या, वैक्सीन लगाते हो. वैक्सीनेट करना, वैक्सीनेट मीन्स किसी को वैक्सीन लगा देना, वो क्या है, वैक्सीनेट है. वैक्सीनेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ वैक्सीन का जो प्रोसेस हो रहा है उसको वैक्सीनेशन कहते हैं. वैक्सीन मीन्स जो नाउन है. वैक्सीनेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ वैक्सीन, जो वैक्सीन बनती है उसमें प्रोसेस कैसा पार होता है, कैसा पता चलता है कि उसमें कितने टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, कैसे अफेक्ट करेगी, कि सिक्योर होगी, सेफ होगी या कैसे होगी. इसी सारी प्रॉब्लम को सारी को पता चलता है हमें वैक्सीनेशन प्रोसेस के जरिए. वैक्सीनेशन इट्स टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच वी
know the real causes and impact of वैक्सीन के causes and impact हम जानते हैं, उसको कहते हैं वैक्सीनेशन मैं बता दूं, क्योंकि हमेशा हो सकता है कि आपको वैक्सीन और वैक्सीनेशन से डाउट हो सकता है in any exam in any time. Definitely you will say that I don't know vaccines noun, vaccination noun. ये क्या है? Vaccination is process in which vaccine can be manufactured, but it can be investigated, it can be conducted research, how it can be secure, how it will be more better for especially any living organism. किसी के लिए इम्पोर्ट क्या हो सकती है, कैसे वो अच्छी हो सकती है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस के जरिए हम पता चला सकते हैं. तो आई होप ये लेक्चर अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा. अगर आपको इसे मिला लेक्चर, इफ दिस लेक्चर स्पेशली आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, बी पार्ट ऑफ दिस especially English grammar course with Chandra Kumar. So be part of this channel. You will be able to learn English very fast. Before going to leave the sessions, I would like to say one quotation, especially you must keep a dream with you, along with you, and you must keep a dream along with you while doing any work. Definitely you will achieve your task. So thank you so much. Bye bye and take care after it.